Hello, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and welcome to the 8th episode of Weekly Takes by Jagjit from New York. As always, we begin by talking about news of the world, happenings in USA, a little known fact about New York City, news of India, and the role of opposition, wherein we will talk specifically about the Congress Party. I must thank you all for your support, which has energized me to continue with my efforts. Many of you wrote to me with suggestions and comments. Almost 2 months have passed since I started the weekly takes from New York, and I must say I am overwhelmed by your responses. I am just trying to keep up to your expectations. Let us begin. International news. Corona has again been the main news headline. While the situation is bad, but there is light at the end of the tunnel. As news of the vaccine being tested on human beings is very much there, with many companies being given orders by their respective governments. In America, Pfizer got a hefty order from the government. Now coming to the numbers. Worldwide numbers of people infected 15.93 million, US 4.24 million, Brazil 2.34 million, India 1.33 million, Russia 800,000 and South Africa 423,000. At the same time, we must also recognize the recovery rates. Worldwide 9.72 million, India 850,000. While loss of each life must be grieved, but for the recovery, all the frontline workers must be applauded. The question remains, who is to blame for all this, China or the WHO? Perhaps we are all to blame for the rise in the pandemic. We do not follow the 3 simple rules laid down: MSW, mask, social distancing and washing your hands. If we all wore face coverings for the next 4, 6, 8, 12 weeks across the globe, this virus transmission would stop. Hong Kong mulls total lockdown amid sharp rise in new virus cases. Face mask rule takes effect in Australia. Anyone caught not wearing a mask or covering faces may get a fine of more than $140. In Great Britain, face coverings are mandatory in enclosed public spaces, and anybody flouting the law would get a fine of up to £100. Wish such rules were enforced, I repeat, enforced worldwide. In space exploration, China launched an ambitious attempt to land rover on Mars. And at the same time, Hong Kong's new reality dawns as city feels chill of national security law. One of the most well-known faces of Hong Kong's democracy movement, Nathan Law, fled Hong Kong a day after the new draconian law came into existence. In another news, the US has ordered China to close its consulate in Houston, a move described by Beijing as political provocation. America says that the decision was taken because China was stealing intellectual property. In a retaliatory move, China ordered US to shut Chengdu consulate, a tit-for-tat move. Now, news about the USA. Corona again. As cases continue to surge, more than 30 US states require that masks must be worn in public. In a separate incident, passengers cheered as a woman was kicked off American Airlines flight after refusing to wear face mask. People are learning the hard way. If things work out well, the American families may soon see the next stimulus check. Additionally, it may include trillions of dollars worth of economic support for individuals and businesses struggling with a US recession fueled by a continued surge in coronavirus cases. At the same time, Nasdaq is doing fine. But the number of Americans filing for unemployment rose back up after 15 weeks of trending downward, with 1.4 million people submitting initial jobless claims for the week ending July 18. More businesses have filed for bankruptcy. In growing feud with China,
the US has charged 4 Chinese nationals with visa fraud for allegedly lying about their membership of China's armed forces. As November coming close, politics is heating up with the election to presidency. Both the party candidates are trying to woo people and communities. Democratic presidential candidate Joe Biden urged Muslim Americans on Monday to join him in the fight to defeat President Donald Trump. Is it ethical? I leave it to you to be the judge. On the other side, a new slogan has emerged: Make America Normal Again. And now, moving over to one interesting fact about New York City. Folks who may have watched the trailer of episode 8 may remember I was to talk about pizza. Yes, pizza. Pizza is the world's most favorite fast food. We eat it everywhere, at home, in restaurants, on street corners. Some 3 billion pizzas are sold each year in the United States alone, an average of 46 slices per person. The word pizza first appeared in Italy in 997 AD. The origins of pizza as we know and love to have delivered are pinpointed to the arrival of Italian immigrants in the late 1800s. Pizza came to mean bread with toppings. The first official pizzeria in America was in New York City when in 1905 Lombardi's opened up. American chefs in due course of time modified the pizza recipe to better suit taste of the local customers and were named accordingly: California style, Chicago style, Detroit style, Greek pizza, Hawaiian pizza, New York style pizza, etc. 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 बहुत हुई पिज्जा की बात, अब चलें हिंदुस्तान की ओर। पूरे विश्व की तरह कोरोना की कहर ने भी हिंदुस्तान के आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले मुख्य 10 राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और बिहार। और हाँ, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है, क्योंकि हम मास्क पहनना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से हमारा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है और साबुन से हाथ धोना हमें बच्चों वाली बात लगती है। तब फिर इस महामारी का प्रकोप फैलता है तो गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है। दोष सरकार पर मढ़ना बिल्कुल गलत है। कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है गलत होगा। भारत चीन संबंध। लद्दाख में सैनिकों पर हमले के बाद भारत चीन के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। ताजा फैसले के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियां बोली में शामिल नहीं हो सकती हैं। ज्ञात रहे कि पहले ही 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लग चुका है। साथ ही अमेरिका सहित कई और देशों ने भी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। कोरोना के साथ साथ मॉनसून ने भी तबाही मचा रखी है। बाढ़ के कारण सड़कें बह गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं। बट इधर एक सर्वे में 77.3% लोगों ने कहा कि कोविड की स्थिति को अच्छी तरह से सरकार संभाल रही है। एक सोच यह भी, विश्व में कोरोना के फैलने पर और लद्दाख में भारत से झड़प के बाद बहुत सारी कंपनियां चीन से पलायन का रास्ता ढूंढ रही हैं। उनका एक हिस्सा भी अगर भारत में आ गया तो चीन पर मर्मांतक प्रहार होगा और बिना युद्ध किए ही चीन को औकात पर लाया जा सकेगा। अगर आर्थिक शक्ति के रूप में चीन कमजोर पड़ा तो लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना की घुसपैठ की हिम्मत नहीं पड़ेगी। एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाला चीन युद्ध से भी बचना चाहेगा। युद्ध से तो भारत को भी बचना चाहिए, क्योंकि युद्ध हुआ तो अर्थव्यवस्था का बड़ा नुकसान होगा और उससे किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। हाँ, और जहां बॉलीवुड नेपोटिज्म का शिकार है, वहीं स्पाइसजेट और सोनू सूद बधाई के पात्र हैं। आखिर उन्होंने मिलकर 1500 भारतीय छात्रों को किर्गिस्तान से वापस लाने का बीड़ा जो उठाया है। सुशांत सिंह राजपूत केस इज अ पॉइंटर। द पर्सन वॉज ड्रिवन टू डेथ by a nepotistic film industry who favors its own. A CBI inquiry into circumstances leading to his death must be instituted. इस मामले में कंगना रनौत की पहल प्रशंसनीय है। अब बात बिहार की। बिहार के उत्तरकालीन इतिहास पर अब चर्चा करते हुए हम देखने जा रहे हैं इसे आजादी के अंतिम लड़ाई
और बिहार में उभरते हुए नेताओं के परिप्रेक्ष्य में, और बिहार की भूमि को अपने आप को नए नेतृत्व के लिए तैयार करते हुए भारतवर्ष में लाला लाजपत राय के आह्वान पर साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था। साइमन की अध्यक्षता में भारतीयों के बारे में राजनैतिक नीति तैयार करने का इसका उद्देश्य था, पर आश्चर्य कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। बिहार ने साइमन कमीशन का विरोध किया और उसका नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह ने किया। दूसरा आंदोलन रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। इसमें 9 अप्रैल 1909 को बिहार में हड़ताल हुआ, जिसमें महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और नंदन प्रसाद आदि ने अदालतों का बहिष्कार किया था। उसके बाद तो जैसे आंदोलनों और अवज्ञा आंदोलनों की आंधी चल पड़ी। 1 अगस्त 1920 को संपूर्ण असहयोग आंदोलन चला, जिसके फलस्वरूप राजेंद्र बाबू ने भी वकालत छोड़ दी और दी मदरलैंड अखबार, जो सदाकत आश्रम से मौलाना मजरुल हक निकालते थे, उससे बिहार में होने वाले आंदोलनों की रूपरेखा तय की जाने लगी। 1922 में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। उन्होंने स्वराज्य दल की स्थापना की थी, जिसकी बिहार में शाखा को श्री कृष्ण सिंह ने शुरुआत की। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 1920 में हुआ था। बिहार में तो समुद्र कहीं भी नहीं है, पर बिहार की सहभागिता कैसे न इसमें होती। बिहार में नवरास पिंड नामक स्थान को इसलिए चुना गया, यह सारण में है। वहां की नमकीन मिट्टी को खौलाकर उससे नमक बनाया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और बिहार में यह 1940 में आई। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 1942 में स्वीकार कर लिया और गांधी जी ने समस्त भारतवर्ष को करो या मरो का नारा दिया। इसमें समस्त भारत के साथ बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह और मथुरा बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण भी गिरफ्तार किए गए। उसके बाद एक और घटना हुई, जिसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है। पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में 7 बलिदानियों का बलिदान भी बिहार की उदाहरणीय घटना है। बिहार का सहयोग आजादी के आंदोलन में भारतवर्ष के किसी अन्य भाग से किसी भी तरह कम नहीं था। बिहार के सेनानियों और समाज सेवकियों की एक लंबी सूची है, जिसका उल्लेख किया ही जाना चाहिए। हर एक बिहार वासियों के लिए यह जानना जरूरी है कि उन्हीं के जमीन से स्वामी सहजानंद सरस्वती, शहीद बैकुंठनाथ शुक्ला, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, मौलाना मजरुल हक, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, पंडित यमुना कारजी, डॉक्टर मगफूर अहमद एजाजी, महेश प्रसाद सिंह, अवधेश्वर प्रसाद सिंह आदि ऐसे चमकते हुए सितारे पैदा लिए थे, जिनके नाम और काम को काल आज भी धूमिल नहीं कर सका है। इन सबों ने आजादी के होम में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के साथ पीड़ितों, दलितों, आवाज विहीनों की आवाज बनकर उदाहरणीय कार्य किए। आज के हर बिहारी युवा को यह जानना चाहिए, जो अपनी बिहारी होने की पहचान को छिपाते हैं, कि वो किस गौरवशाली परंपरा से आते हैं। बिहार ने ही भारत को 1950 में उसका पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया। क्या आप किसी मामले में कम हो? में हम जानेंगे आजाद भारत के प्रांत बिहार की कहानी, और हम तय करेंगे 1950 से 1975 तक का सफर। नाउ लेट अस स्विच गियर्स एंड टॉक अबाउट द कांग्रेस पार्टी। 150 साल से पुरानी पार्टी, जिसने आजाद भारत में केंद्र में 60 साल से ज्यादा शासन किया है। आज हालत खस्ता है और पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेता सोनिया जी, राहुल जी इत्यादि बेल पर हैं। आजाद भारत में बेल कारण पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। चुनाव में हार के कारण का आज तक इनको पता नहीं चला है, पर हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को कारण मालूम है। जाहिर है कि इसी कारण लोगों ने पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह शिकस्त दिया है। कारण सिर्फ एक है, नेतृत्व की असफलता। की तारीख में अगर कांग्रेस पार्टी को देखें तो सिर्फ 3 लोगों की यह जायदाद है, और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इन तीनों का पार्टी में कोई योगदान नहीं है। राहुल बिना किसी पद पर हुए अपनी दादागिरी पूटी पार्टी पर दिखाते हैं, और पद भी इसलिए कि आप किसी खास खानदान से आते हैं। सोनिया जी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, पर राष्ट्रपति अबुल कलाम के संवैधानिक हस्तक्षेप ने उन्हें बनने नहीं दिया। फिर बिना किसी योगदान के राहुल को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। शुरू में उन्होंने काफी जोश दिखाया, पर कुछ पॉजिटिव नहीं कर पाए।
अशोक गहलोत जी की शब्दावली का इस्तेमाल करें तो निकम्मे और नाकारा साबित हुए, पर फिर भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा प्रबल है और आए दिन एक वीडियो पर प्रकट होते हैं और सरकार और देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। मजे की बात तो ये कि जिसने इन्हें पप्पू के नाम से प्रचलित किया वो सिद्धू आज इनके साथ खड़ा है। तीसरी है प्रियंका वाड्रा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब रखती हैं। ज्ञात हो इन्हें उत्तर प्रदेश में पिंकी के नाम से जाना जाता है, कुछ बंटी और बबली के तर्ज पर, पप्पू और पिंकी। फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी की महामंत्री हैं। कोई पूछे कि पार्टी में आपका योगदान क्या है, एक खास परिवार के सदस्य होने के अलावा कोई स्किल हो तो मुझे मालूम नहीं। कार्यकर्ता तो बेचारा ताजिंदगी दरी ही बिछाता रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड की रूपरेखा अगले कुछ दिनों में प्रकाशित ट्रेलर में होगी। अगले एपिसोड में कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हाँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय भारत।